लॉकडाउन सेशन में आपका स्वागत है. As you know, we have started with our second lesson, periodic table, that is the classification of elements, SSC board class 10. And moving ahead, that last time we have seen about the Newlands octave, and in that Newlands octave there are some defects. Because of that the periodic table was unable to conclude. So now, step by step, always all the scientists has given their contribution in this periodic table. The ऐसे ही एक scientist, that is the Lothar Meyer, he came in near about 1864 and he tried to arrange, because he was studying on the different points of the elements like the melting points, boiling points, volume, density and the valency also. And looking all these points, he tried to fit the elements in one particular tabular form, and he started arranging with the help of atomic masses. Atomic masses के हिसाब से उन्होंने arrangement शुरू तो कर दी, but he could arrange with the help of valency, boiling point, melting point जैसे कि chemical and physical properties only till the 28 element. 28 एलिमेंट के बाद वो कर नहीं पाए और थोड़ा सा मेस हो गया. So this is how his contribution was there in the periodic table, but somehow it left there only. Then after that there was a great person who entered in this world, and he is nothing but, you will see, that is the Dmitri Mendeleev. And this personality was the, you can say, pioneer of the periodic table. He was, and the Russian chemist, you can say, he born in the Russia, and during this situation when all this work was going on, that time his family was a well-known family. In 1834 he born in Siberia, and there he started studying with his family. But because of some circumstances, कुछ ऐसे problems की वजह से उनके father, that is the Ivan Mendeleev, he was a priest, और वो कुछ बीमार रहने लगे and he lost his eyes, and after some time he died because of the illness. ऐसे ही उनकी mother, she was a really well-known personality, that is the Maria Mendeleev, and she was working with the glass factory, but there also some problem arises और glass factory में पूरा destroy हो गया, and because of that this family came into a big crisis. And that time the Mendeleev Dmitri was only 13 years of age, and during that situation फिर ये mother और इनकी family ये रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ चल पड़े, and they started their journey from Russia till Moscow, and there they completed, means Mendeleev completed his graduation and the master's degree, and along with that he was succeeded to become a teacher. वो teacher बन गए सेंट पीटर्सबर्ग इंस्टीट्यूट में, and later on his study was, his invention was so well known कि फिर वो प्रोफेसर बने, और अब वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बने, that is the सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने, and he has invented lots of things. He was really a great personality, and he was researching and writing various books, और उन्होंने तब एक बुक लिखी, that is the principle of chemistry. And during his work in interest in chemistry, he started taking interest in the elements. Naturally अगर chemistry पढ़ रहे हैं तो elements तो आना ही आना है, and then he started, or he contributed the existing knowledge of Dobrinier, then Newland, मेयर, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के सारा एग्जिस्टिंग नॉलेज उन्होंने पढ़ा, एंड देन ही स्टार्टेड मूविंग अहेड विथ हिज न्यू इन्वेंशन, दैट इज द पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने अपनी जर्नी पीरियोडिक टेबल की तरफ शुरुआत की. In this way, then he started studying all the elements in deep. First of all, he took the atomic masses. With the help of atomic weight, that is atomic masses के हिसाब से उन्होंने periodic table की study शुरू की, and he started with arranging all the elements. Till that time 63 elements were known. 63 elements की खोज हो चुकी थी, और उन्होंने ये सारे 63 elements को एक अलग सारे कार्ड्स बनाए, छोटे छोटे ऐसे वाले, और ये कार्ड्स पे उन्होंने उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उनके
सिंबल्स लिखकर कार्ड्स बना दिए एंड देन ही अरेंज्ड इन वन पर्टिकुलर लाइन बाय द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. सो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से उन्होंने शुरुआत की और ये कार्ड्स पे फिर उन्होंने विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने वो कार्ड्स पे, छोटे छोटे कार्ड्स पे सारा नोट डाउन किया और ये कार्ड्स जब उन्होंने एक लाइन में अरेंज किए, दैट टाइम ही sorted out the cards with the help of increasing atomic mass and the chemical properties, physical properties. Then he also studied with the help of, you can say, the halides and oxides, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स जो बनते हैं उनके प्रॉपर्टीज भी उन्होंने पढ़ाई की और उस हिसाब से फिर उन्हें एक ग्रुप्स मिलने गए. जैसे न्यूलैंड ऑक्टेव्स का कैसे 7 का ग्रुप मिला, इन द सेम वे he got one particular group which was automatically arranged in the order, and this was how he arranged all the cards with the help of physical chemical properties और एटॉमिक मास. तो अपने आप ही एडजस्ट हो गए, वो अपने आप ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए. व्हेन ही सॉ देन ऑल दिस ही अरेंज्ड इन दिस टेबुलर फॉर्म और इस तरह पीरियोडिक टेबल की पार्ट्स और पर्टिकुलर टेबल बना जो ग्रुप्स और पीरियड्स बन गए. नाउ ग्रुप्स एंड पीरियड्स यू विल सी दैट 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे 8 ग्रुप बनाए उन्होंने एंड देन in this way you will see that is the 6 periods, that is in this way the horizontal rows and the vertical columns, in that he made the groups and periods and he arranged all the elements. You will see here this arrangement, he saw that all the physical chemical properties of this group elements are similar. जैसे कि ऑक्टेव ने बताया था, कई सारे पुराने साइंटिस्ट की चीज़ें मैच होती गई और अपने आप ये टेबल ऑटोमेटिकली इस तरह से सेट हो गया. बट व्हेन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन व्हेन ही सॉ एटॉमिक मास और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कई जगह पर अपने आप एम्प्टी स्पेस उन्होंने छोड़े क्योंकि वो एटॉमिक मास वहाँ पर फिट नहीं हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर्स लेते हैं 1 to 10, 1 to 10 में अगर 5 तक नंबर्स है और डायरेक्टली 8 आता है तो जाहिर है 6 and 7 कहीं ना कहीं तो होगा. This was his great invention and prediction about the periodic table and the elements. He predicted before only that there might be some elements will discover in future. ऐसे कोई elements 100% discover होंगे और उन्होंने उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पहले से बता दी और ये बाद में प्रूफ हो गया. दिस वॉज रियली अ ग्रेट इन्वेंशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ द मेंडेलीव. तो यहाँ पर ये जो खाली स्पेसेस हैं इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने देखा कि ये वाले स्पेसेस को कुछ नाम दिया जाए. सो ही ट्राई टू गिव द नेम ऑफ द प्रायर एलिमेंट. तो यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम है तो उसके बाद जो एम्प्टी स्पेस है उन्होंने उसे नाम दिया एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन. इस तरह से उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसे कई सारे एलिमेंट्स को नाम दिया. एका इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक इन संस्कृत और ऐसे भी कहा जाता है एका मीन्स नेक्स्ट, आने वाला, नेक्स्ट. सो इन दिस वे ही गेव द नेम टू द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देन ही अरेंज्ड all the elements in one particular order. अब यहाँ तो इनकी अरेंजमेंट हो गई, एका की भी अरेंजमेंट हो गई, ये सारे एलिमेंट्स उन्होंने बता दिए कि किस तरह से होंगे. along with that there are some you can say elements which Newland unable to adjust. जैसे कैल्शियम तक न्यूलैंड ने किया था ना, कैल्शियम के बाद वो नहीं कर पाए. Here now this problem was solved by the Mendeleev. What he does, till calcium all the properties, similar physical properties, chemical properties adjust हो गए. After that the elements which are having the increasing atomic mass उसी बेस में है, उसी टेबल में है, but फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एडजस्ट मैच नहीं हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उसी के साइड में एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जैसे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड देन ही अरेंज्ड ऑल द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वन ग्रुप ए और जो मैच नहीं हो रहे थे थोड़े से उन्हें उनके साइड में ही दूसरे ग्रुप में उन्होंने उसे एडजस्ट किया. इन दिस वे ही अरेंज्ड द horizontal rows that is periods and vertical column that is group in one order और इस तरह से he proposed the periodic law. And you know what is the law? That is
properties of elements are periodic function of their atomic masses, यानी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ गई, यहाँ पे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस भी आ गए. अलोंग विद दैट यू विल सी पीरियोडिक फंक्शंस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट्स का पर्टिकुलर इंटरवल भी बराबर हुआ, दैट इज आफ्टर ईच इंटरवल देयर इज अ सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज. ये वाले सारे जैसे कि ग्रुप्स बन गए हैं अल्कली मेटल्स दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस तरह से ये ग्रुप अपने आप ही बनते गए. Till that the noble gases were not invented, but still here he tried to arrange all in this group. Then later on he saw that कि ये सारे arrangement तो हो गए हैं, but the three what he announced, that is what he predicted, तीन एलिमेंट्स या तीन से ज़्यादा एलिमेंट्स जो उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे उसमें से हम एल्यूमिनियम लेते हैं, एका एल्यूमिनियम. इन एका एल्यूमिनियम आफ्टरवर्ड इट वाज इन्वेंटेड दैट इज गैलियम. उस जगह पे गैलियम ये एलिमेंट का इन्वेंशन हुआ. यू विल नॉट बिलीव दैट बिफोर ओनली ही प्रेडिक्टेड कि इट्स डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटॉमिक मास उन्होंने कहा था कि माइट बी 68 एंड वो 69 हुआ, यानी अप्रॉक्सीमेटली उसी सही हुआ. जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन किए थे ये सारे प्रेडिक्शन उनके स्टेप बाय स्टेप सही होते गए और इस तरह से एका बोरॉन वहाँ पर हो गया एलिमेंट जर्मेनियम एंड एका सिलिकॉन वाज नोन बाय द स्कैंडियम. इन दिस वे व्हाटएवर ही प्रेडिक्टेड इट्स प्रूव्ड टुडे और ये प्रेडिक्शन उनका सही साबित हुआ. तो इस तरह से उनके सारे एलिमेंट्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते गए. नाउ आफ्टरवर्ड अगेन यू विल सी द नेक्स्ट स्टेप दैट इज हियर यू विल सी कि न्यूलैंड में एक छोटा सा फ्लॉज था कि कोबाल्ट एंड निकेल अरेंज्ड इन वन पर्टिकुलर box only, but here Mendeleev solved this problem also. So what he does, with the help of properties and increasing atomic mass, he gave the separate you can say box or house to the cobalt and nickel. लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मास इंक्रीजिंग दोनों का नहीं लिया. कोबाल्ट का है 58.93 और निकल का है 58.7. तो 58.8 ये इंक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्मॉलर पहले लिया और बिगर वन दैट इज द 58.8 दैट इज निकल पहले एडजस्ट किया और कोबाल्ट को उन्होंने बाद में एडजस्ट किया. ये एक उनका थोड़ा सा हट के अलग पॉइंट उन्होंने टेबल में एडजस्ट किया पीरियोडिक टेबल में. And he observed the properties of cobalt and nickel, they are matching in that particular tabular form and he used और उन्हें सेपरेट प्लेस भी मिल गए कि जो कि पहले नहीं मिले थे. एक टेबल में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स थे तो मेंडेलीव ने ये उन्हें सॉल्व कर दिया और उन्हें अलग अलग अपना एक टैबुलर फॉर्म, एक अपना ग्रुप और पीरियड दे दिया. इस तरह से यही नहीं, he also discovered some of the elements like gold and platinum. गोल्ड और प्लैटिनम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के बावजूद वो बहुत दूर चले गए, एक ही ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर. और ये ट्राइड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये छोटी छोटी डिफेक्ट्स शुरू होने लगी उनकी टेबल में. इन दिस वे बट इट्स यू कैन से द सक्सेसफुल contribution of periodic table, he succeeded in his whatever the invention he does. Then because of his contribution in the successful periodic table, he was also well known as a father of periodic table. उन्हें father of periodic table भी कहा जाता है. So in this way Mendeleev gave such lots of, you can say, the invention of the periodic table. Now let's move toward his another part, that is there are some defects in the Mendeleev's period. जैसे कि हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन इट इज़ द स्मॉलेस्ट हैविंग एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास भी बहुत ही छोटा है. सो ही कुड अरेंज इन द फर्स्ट ग्रुप. हाइड्रोजन को उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में तो रख दिया. इट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, बट अलॉन्ग विद दैट व्हेन हाइड्रोजन रिएक्टेड विद अदर एलिमेंट, दैट टाइम इट शोज दैट कि आइसोटोप्स का भी इन्वेंशन हो चुका था, आइसोटोप्स की भी खोज हो चुकी थी. Isotopes, you know what it is, that is atomic number are same of same element but atomic masses are different.
क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वेंशन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से एटॉमिक मास में फर्क हो गया एंड हाइड्रोजन के और 2 आइसोटोप्स पता चलते हैं. सो इन दिस वे ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो इन्हें कहाँ अरेंज करें? देयर वर नो एनी पर्टिकुलर प्लेस फॉर द आइसोटोप्स. Similarly, in the textbook it is given, use your brain power. Chlorine has 2 isotopes, that is chlorine 35 and chlorine 37. So their atomic masses are different, and at this situation the place in periodic table Mendeleev unable to give, वो दे नहीं पाए. तो ये एक उनका छोटा सा डिफेक्ट रह गया टेबल्स में. नॉट ओनली दिस, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये उनका छोटे से डिफेक्ट होने शुरू हो गए कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन टू गिव इन द प्रॉपर प्लेस. देन हलाइड्स और ऑक्साइड्स के साथ कंपाउंड बनने के बाद उनके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, उन्हें वो एडजस्ट नहीं कर पाए. Along with that, there were few elements which were arranged according to similar properties. I told you before, gold and platinum, and then with the help of increasing order, nickel और cobalt की जो आगे पीछे हो चुके थे, उनका एक छोटा सा ड्रॉबैक रह गया, जो वो सही अरेंजमेंट नहीं हो पाई. इस तरह से there were some of the demerits also in the Mendeleev's periodic table. तो इन कुछ डीमेरिट्स की वजह से पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से कंसिडर नहीं हो रहा था, लेकिन हिज कंट्रीब्यूशन वाज टू ग्रेट एंड यू विल सी दैट व्हाटएवर ही कुड अरेंज फॉर अस ऑन हिज बेसिस, उनके ये सारे रिसर्च की वजह से, उनके ये सारे इन्वेंशन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको कहा, he was well known as a father of periodic table, and on this his name was nominated for Nobel Prize, but somehow he lost, नहीं मिला. No problem, but lots of another awards he was got for the periodic table. और इतना ही नहीं, इनके इस contribution की वजह से 101 element, 101 वाला जो एलिमेंट बाद में इन्वेंट हुआ, उनके ऑनर में उसे नाम दे दिया गया, दैट इज मेंडेलिवियम इन 1955 ऑन हिज ऑनर. और इतना ही नहीं, जिस यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे थे, उस यूनिवर्सिटी को उनका स्टैच्यू बनाकर वहाँ लगाया गया, और उनका जो इन्वेंशन था, द डिफरेंट कार्ड्स ही मेड ऑफ एलिमेंट्स, उसी कार्ड्स का पर्टिकुलर एक फॉर्म और उनका पीरियोडिक टेबल ऐसे स्टैच्यू के साथ उस यूनिवर्सिटी को स्ट्रक्चर में बनाया गया. You will see in this way he arranged all the cards in the particular rows and columns. तो ये वाले एलिमेंट्स के जो कार्ड्स है, उसी तरह से उनका स्ट्रक्चर और इस तरह से उन्हें ऑनर दिया गया, और उनके उसी के उन्हीं यूनिवर्सिटी में उन्हें ये स्ट्रक्चर लगाया गया. सो इन दिस वे Mendeleev has given a lots of things, and as he was researching and writing n number of books, for that also he got the different prizes. And not only this, but उनकी स्मृति में, उनके ऑनर में there was one award that is given, this award as an golden award, and this award was given to such scientists, those who are studying in the chemistry and the chemical reactions or the chemical subject. chemistry में उनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है. So in this way Mendeleev's contribution was a greatest achievement in the periodic table, and this is how the Mendeleev's periodic table was well known today. I hope you like this session very much. If you like it, just comment me on my comment box. If you are having any queries, share it, like it and subscribe it. Jai Hind.